को मैं जीशान कादी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। आज 18 जनवरी मुंबई मराठी पत्रकार संघ में चेका द रोड ऑफ बोन्स, जिसके लेखक है जॉयदीप मुखर्जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट है। इस बुक में सुभाष चंद्र बोस जी की मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के बारे में लेख है। लेखक जॉयदीप मुखर्जी ने इस बार इस बात पे जोर दिया है और उल्लेख किया है कि नेताजी सोवियत यूनियन, आज का रशिया, में 18 अगस्त 1945 के बाद थे और बुलार्क और कुछ समय बाद उन्हें याकुत्स्क जेल ऑफ ओएमएसके सिटी साइबेरिया सेल में रखा गया। इसकी टेस्टिमनी डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा ने दी है, जो कि एक डिप्लोमेट है। डिप्लोमेट सत्यनारायण सिन्हा ने ये भी खुलासे किए हैं कि करीब 2 लाख से ज़्यादा कैदी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जेल्स में रखे गए और रशिया के सोल्जर द्वारा मारे गए और कुछ की मौत -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड की वजह से हुई। इनके बॉडीज़ को एक पैसेज में दफनाया गया, जो ओबी नदी साइबेरिया में है, और उस पर एक रोड बनाया गया जिसे द रोड ऑफ बोन्स कहते हैं। इस बुक के ऑथर ने ये साबित करने की कोशिश की है और रिटायर्ड जस्टिस मनाज मुखर्जी कमीशन और जस्टिस साहे कमीशन ने कहा है कि नेताजी की हत्या प्लेन क्रैश से नहीं हुई और जो एशेस राख रेनकोजी मंदिर में है वो नेताजी के है ही नहीं, और ये स्पष्ट है कि जो मौन गुमनामी था वो नेताजी नहीं है। इसलिए बस यही सवाल अब बचता है कि रशिया गवर्नमेंट नेताजी के आखिरी दिनों का जवाब कैसे देगी। ये सवाल मुखर्जी ने उठाया है। ऑथर मुखर्जी ने सारा अधिकार से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार रशिया की सरकार के साथ एक बैठक ले और सुभाष चंद्र बोस जी के आखिरी दिनों का क्या सच है वो रशिया सरकार से पता लगाए। एक वॉर मेमोरियल भी नेताजी के नाम से स्थापित हो और आज़ाद हिंद फौज की याद में भी अर्पित हो, जो अंग्रेज़ों से लड़े थे इस देश को आज़ाद करने के लिए। आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में चेको का बुक लॉन्च हुआ और ये बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप सारे डिटेल्स और हिस्ट्री नेताजी के बारे में देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। I have a question for you. You have written the book the Cheka. It's about the life of our freedom fighter Netaji, and you have done an inauguration also in Mumbai Marathi Patrakar. So I have a very simple question for you, sir. That there are 3 controversies in regard to Netaji's death. One saying that Bose became a holy man. Bose became Subhash Chandra Bose became a holy man and was killed in Assam Naga Hill country. According to one controversy, that is called Tsunami Baba. Yeah, and the second is other claim that he was a member of monoclonal delegation in Peking, and the third claim is some claim that he lived in Russia or Chinese army. And these are many claims. So the youth of India, if they read this type of book, they will get confused about our great freedom fighters. So can you just tell our audience that all the facts which you have stipulated in your book, The Cheka, is based on which findings and how much effort did you take in trying to bring out the facts about Netaji, and what is the message for the youth of the country when they read this book? What message they will? I am trying my level best to expose the truth, because I have visited 20 countries in the world, and I have collected documents from the different archives. And after collecting the documents from archives, that I came to conclusion, which was very much in the alive after 1975, so-called brain test. Because brain test theory is absolutely false and fabricated and artificial, and itself, this is, I am sorry to say that Subhash Chandra Bose himself spread the news. So I was the British, and to divert the British that he is escaping from the Saigon to the Manchuria, and that's why we are also that both died in the plane. But the British never believed that Subhash died in the plane. If you see, they go to the MI5, MI6 documentation on archive documents, MI5, MI6 documentation. Then you can realize that British never today still today they didn't believe that Bose died in the plane, because they were very much aware that Subhash Chandra Bose was in Russia under the shelter of Stalin.
Sir, And that's why Bose was very much under, because Nehru was very much aware, and that's why Subhash Chandra Bose उनका जो प्लेन टेस्ट में डेथ वो नहीं हुआ, इसलिए इंडिया गवर्नमेंट का इतना कॉन्ट्रीब्यूशन थे कि 3 कमीशन को आयोग को गठन करने को था, और 3 कमीशन का रिपोर्ट सेपरेट थे। जस्टिस मनोज बिकॉज क्योंकि कुछ लोग बोलता है सुभाष चंद्र बोस, एज पर योर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस बिकेम द मॉन्क एज होली Baba. Subhash, that is, if you go to the Sahai Commission report in my book, in the page, in the last page, Sahai Commission report, that the Unnami Baba was not at all Subhash Chandra. It's a judicial commission report. Then you have told about the ashes also, that Japanese government says that they have the ashes of Italy. So what is your take on this, especially by the government of Maharashtra? What is your message to the government? That's what they should do. देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पास तो सुभाष चंद्र बोस का कुछ फाइल नहीं है, तो कुछ फाइल नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बंगाल गवर्नमेंट का पास है फाइल। सुभाष चंद्र बोस बेसिकली फ्रॉम बंगाल, पर सुभाष चंद्र बोस का पास जितना फाइल है सेंट्रल आईबी का पास फाइल है, सेंट्रल आईबी का प्लस फाइल है। तो सेंट्रल आईबी का पास जितना फाइल है, इसमें कुछ फाइल क्लासिफाइड है, तो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो सुभाष चंद्र बोस का फाइल को जितना फाइल है, इसको ओपन करने के लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूँ, जितना फाइल है वो डिस्क्लासिफिकेशन सब कर। सर नमस्कार सर, आज ये जो आपकी बुक लॉन्च हुई है सर, ये अगर किसी को सुभाष चंद्र बोस जी की बुक पढ़ने का अवसर मिले तो वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं क्या? आप लोगों का कुछ लैंडलाइन नंबर है जिसके द्वारा? नंबर है 9831046792, माई लैंडलाइन नंबर। कोई बुक रिजर्व लेंगे तो हमको फ़ोन करेंगे तो हम लोग भेज देता है, अदरवाइज ऑनलाइन भी मिलता है। ये बुक की शुरुआत अभी आज से हुई है? नहीं, एक बुक की शुरुआत इसका स्टार्टेड हुआ बंगाल से हम लोग कोलकाता में लास्ट ईयर में इनको ओपन जनरल जीडी बख्शी ने ओपन किया, जनरल जीडी बख्शी। तो सर इसकी क्वांटिटी टोटल कितनी है? में हुआ, मैटर्स का बाद ये हुआ दिल्ली का बाद आज हो। सर इस बुक की क्वांटिटी कितनी है और ये कितने साल या महीने से छप के लोगों के बीच जा रही है? 500 रुपीज़ का है, और इसका क्वांटिटी तो 2000-3000 का ऊपर हुआ, हम लोग पब्लिश किया, लेकिन इसका कॉस्ट सब्सिडी में हम लोग दे दिया 500। जिस तरह सुभाष चंद्र बोस जी सबके दिलों पे राज करते थे और उन्होंने अपनी एक भूमिका निभाई, देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान भी किया सर। तो आपको क्या लगता है कि ये किताब ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए? इसको स्टूडेंट का सबसे पहले नेताजी ब्लावर जो है और नेताजी का अनुरागी जितना है उनका पास जाना चाहिए, और स्टूडेंट का पास जाना चाहिए। तो स्टूडेंट को जानना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस का अंतिम परिवर्तन क्या है। धन्यवाद सर। दर्शकों, हमारे साथ इस समय सैकत दास के डायरेक्टर हैं और इन्होंने बंगाली में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज बनाए हैं, बहुत सारे बनाए हैं। तो आज द चीकू के बुक लॉन्च में उपस्थित है, उनसे बात करेंगे सभी को दिखा। आज जो बुक लॉन्च हुआ, जो नेताजी के बारे में बहुत सारे खुलासे किए गए और जिस तरीके के उनके डेथ किसी न किसी तरीके से कॉन्फ्रेंस में बताया गया था, उस पर जो ऑथर है उन्होंने बहुत डिस्कशन किया। आपको कैसे लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत सालों से रिसर्च कर रहे हैं, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्या हुआ था सुभाष जी, कब क्या थे। तो ये क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चंस का जो आंसर है, तो ये ढूंढने के लिए सब बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे हैं। तो उसके साथ बहुत कुछ चीज़ें पता चला है कि वो उसके बाद भी वो थे, रशिया में थे, और चेका जो इसका नाम है वो एक स्लो पॉइजनिंग है, एक ऐसा एक उसका जो सिस्टम है उससे उसका डेथ हुआ है। तो बहुत भयानक ये परिस्थिति उसके साथ हुआ है। श्योर, ऑब्वियसली कंग्रेचुलेशंस, वो इतना अच्छा एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, और मुझे लगता है ये बुक सबको पढ़ना चाहिए।
कि वो जो क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में होता है कि कहाँ गए, एक्चुअली क्या हुआ था, स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज़्यादा से पढ़ना चाहिए क्योंकि उनको तो ज़्यादा क्वेश्चन होगा ना यंग जनरेशन नहीं, मुझे लगता है यूथ को नहीं, ये पढ़ना चाहिए उन लोगों को जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं। वो तो सही, गुमनामी बाबा थे जो अफवाहें फैला रहा है कि वो उसका डेथ हो गया, उसको पहले पढ़ना चाहिए। थैंक यू।